हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की रिगार्डिंग योर जेईई एडवांस एग्जाम्स। द मेथड जो इस डेरिवेशन में यूज़ होता है वो आपको जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय इस्तेमाल हो सकता है। तो द स्टेप्स विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस डेरिवेशन कैन बी यूज टू सॉल्व द जेईई एडवांस प्रॉब्लम्स ऑल्सो। So this is why this derivation is very much important. So the derivation which we are going to do here is we are trying to find out the potential inside a solid non-conducting charged sphere. The charge on the sphere is given such that the charge is being uniformly distributed throughout the body of the solid non-conducting sphere. So firstly we have to take a solid sphere. और इस solid sphere में आपका रेडियस है इसका r and we have given the charge q to the whole sphere and this charge is being uniformly distributed. Uniformly distributed means every volume of this solid sphere contains equal amount of charge. So because of its non-conductance, the whole charge will be distributed throughout the body. And what is the problem we have? Which we are going to solve, we try to find out the potential inside any arbitrary point, say A, which is at a distance small r. ठीक है? So to do that, the whole charge has been given to the solid sphere is q. ठीक है? So we have to find the potential at this point. So first method, or you can say first step to solve this problem is take a radius r sphere like this and try to separate this sphere, small sphere, from the bigger sphere. So it will become like this. The small sphere is having radius small r containing some amount of charge, say small q, and the point here is A, and the remaining portion will act like a hollow sphere. The remaining portion जो बचेगा वो एक hollow sphere की तरह काम करेगा, जिसका अंदर का रेडियस inside radius small r, बाहर का रेडियस कैपिटल r. And the charge is being distributed throughout this material. जहाँ पे material है इसका ये hollow portion हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ से निकाला. ठीक है? The point is A here. तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ा वाला बन जाएगा. ठीक है? तो जोड़ने के बजाय हमने सेपरेट कर लिया है. तो find out the potential here. So what we will do? We will find out the potential due to this sphere from on to this point, say V1. अगर हम निकाल लेते हैं तो उसकी वैल्यू V1 होगी. और इस hollow sphere को एक से पॉइंट पर हमने पोटेंशियल निकाल लिया तो उसकी वैल्यू V2 होगी. ठीक है? और उसके बाद हम इसको अगर ऐड कर देंगे तो इस hollow पोर्शन की वजह से भी आ जाएगा, इस सॉलिड पोर्शन की वजह से भी आ जाएगा. तो V will get our answer, that is V. तो potential at point A is V. So we have to separate those one solid sphere and one hollow sphere, and we will try to find out the potential due to these differently and we add it. Why we are going to add? Simply because potential is a scalar quantity. It can be easily added or subtracted using normal arithmetic methods. It is not a vector. तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी कि इस स्फीयर की वजह से कितना आ रहा है, इस स्फीयर की वजह से कितना आ रहा है. हम सिंपली जितना भी आ रहा होगा उसको ऐड करना है. ठीक है? So let us try to find out the potential at this point due to this small sphere. ठीक है? तो सरफेस का हमें निकालना है, तो V1 की वैल्यू सिंपली हो जाएगी kq by small r. ठीक है? तो V1 की वैल्यू हो गई kq by small r, small q by small r. टोटल चार्ज हमने इस स्फीयर पे दिया था वो था कैपिटल Q, और हमने एक बात बोली थी कि यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी हर एक वॉल्यूम में, इसके हर एक यूनिट वॉल्यूम में सेम चार्ज मौजूद है. सो उसके लिए हमने एक अदर फिजिकल क्वांटिटी जान की जिसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें क्या बताता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमें बताता है कि इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है. ठीक है? इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद होगा. हमने पहले बोल दिया है कि अगर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सारे वॉल्यूम्स में सारे वॉल्यूम्स में सेम ही चार्ज रहेगा. तो यानी ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, जो हमें बताती है कि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, वो पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट है. तो पूरे स्फीयर के लिए कांस्टेंट है. तो पूरे स्फीयर पे कितना चार्ज होगा? Q चार्ज दिया है, तो उससे इसका क्या रिलेशन होगा? रो द चार्ज प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम. पूरा वॉल्यूम कितना है? ओवर Q. तो Q की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ये होगी. अब स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी? स्मॉल q की वैल्यू क्या होगी? आपकी
इतने वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है वो कैसे निकालेंगे, रो सिंगल वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है रो एंड मल्टीप्लाई कर द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर 4/3 बाई स्मॉल q। अगर हम इसको और इसको डिवाइड करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q। सो q/2 विल डू वी विल गेट स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³। So from this we get the value of small q as q capital R³ by small r³ by capital R³. We'll put the value here. We'll put the value here and we get the value of V1 as k q R³ by R³ into small r. So finally we will get the value of V1. We can take out one r from this portion. So we will get value of V1 as k capital Q r square by R³. This will be the value of V1. Now we will try to find out the value of V2. Okay. Please remember the value of V1 as we will write it here, so that we can use it here in the values K2 after r square by R³. Okay. Now we will try to find out the value of V2. V2 is the value of potential here due to this hollow sphere. Okay. So to do that, we have to take a small elemental thickness dr here. So dr thickness लेने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें शेल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्फेरिकल शेल टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाएगा अगर हम यहाँ पे dr thickness की विड्थ ले लेते हैं। ये हमें शेल है, इस शेल में थोड़े और चार्जेस मौजूद होंगे। तो चार्जेस समझ लेते हैं कितना मौजूद है। मान लेते हैं इस dr थिकनेस के शेल में, dr थिकनेस के शेल में मान लो चार्ज dq मौजूद है। इस dq की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज मौजूद है, रो। तो रो यूनिट वॉल्यूम मौजूद है, तो dr थिकनेस वाले शेल की जो वॉल्यूम होगी वो कितनी होगी, उसके वॉल्यूम को मान लो dv। तो dv कैसे निकलेगा, dv निकलेगा इस शेल का सरफेस एरिया कितना है, इस शेल का सरफेस एरिया है 4πr स्क्वायर, बिकॉज r रेडियस का ये शेल है और इसकी थिकनेस कितनी है dr। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस शेल और इसमें चार्ज कितना है dq और वॉल्यूम चार्ज जैसे कि हमारी कितनी है रो। तो इस पे dv का मल्टीप्लाई कर देंगे तो dq की वैल्यू आएगी। तो dq की वैल्यू कितनी है हमारी, dq की वैल्यू आई रो 4πr स्क्वायर dr। दिस इज द वैल्यू ऑफ dq। अब हमें पता है अगर कोई आपका हॉलो स्फीयर होता है उसके इनसाइड पॉइंट में अगर हमें यहाँ पे अगर पोटेंशियल निकालना होता है और उसको हमने कोई मान लो चार्ज दे दिया है q और उसका रेडियस है r, तो हम सिंपली लिख देते हैं kq बाय r, बिकॉज सारे पॉइंट्स चाहे अंदर हो चाहे सरफेस पे हो सब पे आपका सेम पोटेंशियल रहता है इस वजह से। ठीक है। तो इस शेल के लिए भी हम वही फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। इस शेल की वजह से इस ए पॉइंट, इस शेल की वजह से इस ए पॉइंट में मान लो जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा आपका, यहाँ पे dv यूज कर चुके हैं तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं dv ऐसे थोड़ा सिंपल लगा देते हैं। ठीक है। सो इस शेल की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल dv है। ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी k, इसके पास चार्ज कितना है dq और ये कितनी डिस्टेंस में है, कितना रेडियस है इस शेल का स्मॉल। तो दिस विल बी द स्मॉल पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज प्रेजेंट इन दिस स्मॉल थिकनेस शेल। ठीक है। अब dq की वैल्यू हमारे पास क्या है, dq की वैल्यू है हमारी रो 4πr स्क्वायर dr, रो 4πr स्क्वायर dr और डिवाइडेड बाय r। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी रो k 4πr dr। दिस इज b की वैल्यू। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। टू इंटीग्रेट we can see the hollow sphere है, इसका जो एक्सटेंट है कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से आपका कैपिटल R तक, यहाँ से पूरा यहाँ तक। ओके। यहाँ से ऐसे रिंग्स जुड़ती चली जाएंगी, इसमें शेल्स सॉरी जुड़ती चली जाएंगी और ये पूरा हॉलो स्फीयर तैयार हो जाएगा। इसके बाद एक शेल और जुड़ेगी और जुड़ेगी पूरा शेल आपका पूरा एक हॉलो स्फीयर तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी जो शुरुआती एक्सटेंट है वो कैप स्मॉल r है और ये कहाँ तक जा रहा है, कैपिटल R तक जा रहा है। ठीक है। तो इस r की जो लिमिट हो जाएगी वो स्मॉल r से कैपिटल R तक हो जाएगी। सो हमें
इंटीग्रेशन करना पड़ेगा टू गेट द पोटेंशियल एट टू दिस हॉलो स्फीयर। तो हमें लिमिट रखनी पड़ेगी रो के 4 पाई आर डी आर, लिमिट स्मॉल आर से कैपिटल आर, ठीक है। सो रो के 4 पाई इज अ कांस्टेंट, रो के 4 पाई बाहर आ जाएगा, आर का इंटीग्रेशन होगा आर स्क्वायर बाय 2 एंड लिमिट स्मॉल आर टू कैपिटल आर। सो दिस विल गिव अस पोटेंशियल से V2। हमने माना था पहले कि इस हॉलो स्फीयर की वजह से जहां पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, V2 आएगा, ओके। तो उसके बाद V2 की वैल्यू कितनी आएगी, V2 की वैल्यू आएगी रो के 4 पाई। लिमिट्स रख देंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे तो आर स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट बाद में रखेंगे तो स्मॉल आर स्क्वायर बाय 2, आर की जगह आर ही आएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। 2 वी कैन टेक कॉमन आउटसाइड, रो के 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये V2 की वैल्यू आ गई, ये V1 की वैल्यू, ठीक है। अब हमें पूरे हॉलो स्फीयर की वजह से भी और जो सॉलिड पोर्शन यहाँ से निकाला था उसकी वजह से जो पोटेंशियल आया था तो वो ऐड करके फाइनल पोटेंशियल निकालना पड़ा। तो अब हम वो निकालते हैं। V1 की वैल्यू हमारी आ चुकी है और V2 की वैल्यू भी आ चुकी है। तो फाइनल पोटेंशियल कैपिटल V1 प्लस V2 हमारा, V1 हमारा आ चुका है K R स्क्वायर बाय R क्यूब प्लस रो की वैल्यू भी अगर हम पुट करते हैं तो और अच्छा आंसर आ जाएगा। रो की वैल्यू हमारी क्या रख सकते हैं, रो इज चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट व्हाट, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो रो की वैल्यू रख देते हैं, रो की वैल्यू ये रख देते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम 4 बाई आर क्यूब। पूरे सरफेस पे क्यों चार्ज करो तो पूरे सरफेस का हमें वॉल्यूम देना पड़ेगा, R square minus R square. Okay. Now this 3 will go up and pi will cancel here. 2 will remain only. यहाँ पे क्या बचेगा, 2 will remain only. K cube R square by R cube plus 3 ऊपर आ जाएगा 3 K यहाँ पे K cube और पाई कट जाएगा, ठीक है। यहाँ नीचे बचेगा हमारा 2 क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, ठीक है। पाई कैंसिल हो चुका है और नीचे बचेगा R क्यूब, ठीक है। और अंदर है R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। इसको और भी अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है, टू गेट द फाइनल रिजल्ट। अब ये आ गया हमारा पोटेंशियल इनसाइड पॉइंट पे किसी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए जिसको हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक चार्ज दिया था कैपिटल Q। अब इस फॉर्मूले से हम उसके सेंटर पे कितना आपका पोटेंशियल होगा ये भी निकाल सकते हैं। टू गेट द पोटेंशियल एट द सेंटर सपोज दिस होगा स्फीयर और उसका रेडियस r, आपका r वैल्यू मिलेगी एक पॉइंट के लिए, ये r का r 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर पे मिल जाएगा, तो इसमें अगर हम r = 0 रख देंगे, स्मॉल r = 0, ठीक है, तो हमें सेंटर बन जाएगा। स्मॉल r = 0 रखेंगे तो ये वाला एंटिटी 0 हो जाएगा और ये वाला एंटिटी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 3k³ × 2r स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास पोटेंशियल बचेगा सेंटर के लिए 3k³ × 2r स्क्वायर, नहीं इसका आएगा 3k³ / 2r, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एट सेंटर फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। अब अगर सरफेस से बात करते हैं, सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे होता है यहाँ पे K∗Q/R। तो अगर इसके और इसके बीच में सरफेस और सेंटर के बीच में रिलेशन निकालें तो ये K/ds, दिस इज द रिलेशन, ठीक है। सो द मेथड व्हिच वी हैव यूज्ड टू स्प्लिट द सॉलिड स्फीयर इनटू 2 पार्ट्स, दिस मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ एडवांस क्वेश्चंस को सॉल्व करने में वो मेथड यूज हो सकता है। So that is why doing the derivations of certain formulas, certain concepts is very much important to solve the advanced problems in your examination, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, we'll meet you in the next video.